सो आई थिंक दैट थॉट कि रिक्रूटर बनने के लिए आपके अंदर सिर्फ एक पैशन और कुछ स्किल्स चाहिए, दैट थॉट प्रॉम्प्टेड मी टू राइट दिस बुक, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं या मेरे जैसे कितने लोगों के पास जाके उनको बताएंगे कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको बुला रहा है और आप अपना करियर शुरू कर सकते हो. I think one book can actually reach millions of people. Wow. And it can help them. At the same time, it can celebrate those unsung heroes and heroines who are actually sitting back and finding talent for the organization. Wow. Because आप बिना talent के, जैसे मैंने बोला, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. True. You have to have people to support any cause. Super. So as you said, मुझे इससे आपके conversation से मुझे लगा, मेरी नज़र में हर वो एक लीडर रिक्रूटर है जो अपनी टीम के लिए हायर कर रहा है. बिल्कुल. एंड एज यू सेइंग दैट एनीबडी कैन बी अ रिक्रूटर. बिल्कुल. सो व्हाट यू थिंक, व्हाट ऑल आर द स्किल सेट और ओनली टॉप 3 स्किल सेट विच इज मैंडेटरी फॉर दिस पर्टिकुलर रोल? तो स्किल वाइज एज आई सेड कि एक तो ये चीज़ कि आपको लोगों को ढूंढने की. सो if you are a recruiter, I think one skill which I think that a recruiter should have is ki they should know how to find talent. And I believe that there is a sequence of alphabet for all recruiters, which is A, B, C, F and R. Anybody can be found and recruited. So if you are a talent and if I am willing to hire you, then I will find you and recruit you. Wow. So मुझे ऐसा लगता है कि the one and only skill which a recruiter should have is they should be capable enough to find the talent. Now, second important thing is they should know what are the platforms they should look for that talent. So, what are the platforms they should be reviewing, or they should be actually kind of exploring to find the talent, because not necessarily that all candidates will be available in one platform. Like for example, LinkedIn. It's one of the amazing platform. Most of the people are there, but still we cannot claim, LinkedIn cannot claim that they have 100% of the people available, 100%. right? Similarly, if you are looking for a designer, visual designers होते हैं ना, graphic designer आपकी website बनाते हैं. So there are tools like Behance and Dribbble. Those are very great platforms to find designers. अगर आपको डेटा साइंस से साइंटिस्ट ढूंढना है तो नॉट नेसेसरली आपके जॉब बोर्ड्स या लिंक्डइन या हाईरीजी जैसे प्लेटफॉर्म, आप कैगल, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड कैगल, आप उसमें डेटा साइंटिस्ट को ढूंढ सकते हो. वाओ. एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरा कि इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर डॉक्टर्स, इफ समवन इज लुकिंग फॉर डॉक्टर्स, then Quora is a place. आपने Quora के बारे में सुना होगा, question and answers, right? But lot of doctors are very active on Quora. So आपको actually अगर बहुत knowledgeable doctor चाहिए, एक knowledgeable field में specific कोई specific आप skill set देख रहे हो कि इस specific skill में, इस specific disease में आपको कोई expert चाहिए, आप Quora में देखोगे ना, you will figure out all the experts and the ratings they have got for their answer. तो for recruiter, one is you have the eye for detail. You are actually very capable to find the talent and recruit that person, and you know which platform will give you that particular talent. If you have these skills, I think that's it. And if I'll say this will be useful for the only one who's recruiting the talent, or anybody or everybody? Anybody and everybody, because फॉर इंस्टेंस जिनको हम हायरिंग मैनेजर्स बोलते हैं, जो हमारे टेक्निकल लीडर्स हैं, बिजनेस पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग मनी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द पीपल हु अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर एवरीवन, राइट? दे ऑल्सो आर लर्निंग रिक्रूटमेंट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि टैलेंट कहाँ से आ रहा है. सो आई हैव कम अक्रॉस विथ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली गाइड द रिक्रूटर्स दैट यार ये वाला प्लेटफॉर्म, मतलब मैंने देखा है, इसमें एक पोर्टफोलियो देखा है, गिटहब आपने अगर सुना होगा, दैट्स अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स. सो आजकल सारे हायरिंग मैनेजर्स और बिजनेस पीपल को पता रहता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें होते हैं मतलब डिज़ाइन डेवलपर्स, तो वो लोग रिक्रूटर्स को बताते हैं. हालांकि रिक्रूटर्स ऑल्सो नो अबाउट इट, बट दे
tell the recruiters कि I have seen this person's profile on GitHub, so why don't you find out that person. Wow. So recruitment and knowledge of recruitment is not only limited to recruiters. I think everyone should learn recruitment. True. Because I think human talent is the I would say क्या बोलते हैं इसको, सोने की खदान है ह्यूमन टैलेंट, राइट? दुनिया में अगर एक्चुअली कोई सोना है या मतलब समझ रहे हो आप, जो कोई दौलत है तो वो ह्यूमन टैलेंट है. True. उसको अभी तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है. तो अगर आपको ह्यूमन टैलेंट को ढूंढना आ गया तो you need those eyes and you need to know where that person is actually sitting. तो यार कहते हैं ना कि तुम कहीं भी होगे दुनिया में, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी. तो बस पता होना चाहिए, अगर वो स्किल है दुनिया में तो वो बंदा भी कहीं ना कहीं होगा. हमें उसको ढूंढना आना चाहिए. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं आई विल पोस्ट एंड प्रे. वो होता है ना, जॉब पोस्टिंग कर दी, अब कोई एप्लीकेशन ही नहीं आ रही है, पोजीशन इज नॉट गेटिंग क्लोज क्योंकि किसी ने अप्लाई नहीं किया. यार आपको सब कुछ करना पड़ेगा. आपको जॉब पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी, आपको शायद कॉल्स भी करने पड़े. कोल्ड कॉल्स अब हम लोग एनकरेज नहीं करते बिकॉज इट्स लाइक डिस्टर्बिंग पीपल्स प्राइवेसी. बट समटाइम अगर कैंडिडेट रिज्यूमे में एक्टिव है और आपको लग रहा है जॉब बोर्ड में उसने ओपन टू वर्क लिखा है, देन यू कैन एक्चुअली हैव अ लाइक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो मेल्स करके कि कैन यू टेल अस योर अवेलेबिलिटी फॉर अ गुड और गुड टाइम टू टॉक. तो आप अगर एक बार कर लो तो आपको कॉल भी करना पड़ता है, आपको जॉब पोस्टिंग करनी पड़ती है, आपको मेलर्स करने पड़ते हैं, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट मार्केटिंग, आपको कैंपस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा. अगर आप सोचोगे आप एक काम करोगे तो आपको वो बंदा नहीं मिलेगा जो एक्चुअली उसके लिए बेस्ट सूटेड है. हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो क्वालिटी से, पर मुझे लगता है कि कोई ऐसा भी होगा जो इंस्टाग्राम में रील्स देखते देखते अप्लाई करेगा आपकी जॉब पे, राइट? बिल्कुल. तो आपको इंस्टाग्राम में भी होना है, आपको फेसबुक पे भी होना है, आपको ट्विटर पे भी होना है, लिंक्डइन पे, एंड देन आई सेड दैट ऑल द प्लेटफॉर्म्स यू हैव टू बी देयर. गुड थिंग इज दैट नाउ डेज देर आर प्लेटफॉर्म्स जो, जैसे हाईरिजी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप रिक्रूटर अगर सर्च करता है तो उसको कोई भी टैलेंट कहीं भी होता है वो वहाँ से फेच करके आपको एक ओपन वेब सर्च होती है, वो उससे आपका प्रोफाइल पुल करके रिक्रूटर को फेच करके दे देता है. एंड दैट्स फ्री? नो, दैट्स पेड एक्चुअली, बट इट हैज़ सम इनिशियल फ्री वर्जन एज वेल. उसके कुछ क्रोम एक्सटेंशंस हैं जो अवेलेबल रहते हैं, तो पीपल कैन सर्टेनली ट्राई. अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि हाईरिजी कैसे काम करता है तो यू कैन ट्राई. देयर आर ample amount of tools, not only HireEasy, there are other tools as well, जो आपको ओपन वेब में सर्च करते हैं. तो अगर वो बंदा गिटहब में है या लिंक्डइन में है या naukri.com में है, टाइम्स जॉब्स में है, मॉन्स्टर में है, तो अगर उसका कहीं भी प्रोफाइल है जो ओपन वेब सर्च है ना, तो वो उसको फेच करके प्रोफाइल दे देता है. अगर ओपन प्रोफाइल अवेलेबल है, लॉक है, प्राइवेट है तो अलग बात है. टैग कर देगा वो कि टैग करेगा उसका लिंक्डइन प्रोफाइल, तो आपको डेफिनेटली थ्रो हो जाएगा. तो आपको अगर 10 प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है. आपने इट्स लाइक जैसे चैट जीपीटी, इट्स अ गूगल ऑफ रिक्रूटमेंट. तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं. दोज आर गूगल ऑफ लाइक जॉब सर्च बोर्ड्स. तो आप अगर वहाँ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स का रिज्यूमे मिलता है. कैन यू गिव अस सम लिस्ट फॉर आवर ऑडियंस जहाँ पे उनको ये वन स्टॉप सोल्यूशन मिल पाए? फॉर एग्जांपल द वन हु इज हायरिंग एंड द वन हु इज अप्लाइंग, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल. So like I said, if you're a recruiter, you have to do everything to find the talent. Similarly, if you're a job seeker, you have to do everything to be found by the recruiters. So you have to be present on all major platforms. Especially, I would say that you should have a strong LinkedIn profile and updated LinkedIn profile. You cannot survive with a 1-year-old LinkedIn profile and still keep hunting for jobs. So you have to have a strong LinkedIn profiles. You need to have an updated resume. See if you can upload your updated resume every month. If you are actively looking for a job, upload your resume and keep it updated in all important job boards. You know all major famous job boards in India, and if you are looking for global jobs, you know there is Indeed, there is Glassdoor, you know about naukri.com, you know about Monster. Then there are other, like if you are in US, so there are clearance jobs. If you are looking for job in US and
you are someone who have top secret clearance or secret clearance, then you should be active on clearance jobs platform. So there are ample amount of tool. I have spoken to about those tools in my book also. Wow. And 100% sure that I cannot cover all the tools. There are Of course. millions of tools, but at least you need to know that you cannot just be present in one place and do post Yes. and pray or keep waiting for employer to reach out to you. I have seen one approach, especially in the job seekers. They always choose the easiest path, which is poking consultants, Exactly. applying on Naukri. That's it. But what I I can relate from your conversation is people really need to put good efforts to apply in. I mean, consistency has to be there, and they have to be, in an explorer that mode, Exploring, exploring mode. themselves and exploring opportunity too. Exactly, and don't limit yourself to a specific skill. Yeah. If you have completed your engineering or any graduation from a specific like specialization, don't limit yourself to that specialization. You are a fresher, you are like a कच्ची मिट्टी की तरह हो आप, तो अपने आप को expand your boundaries. Correct. Like I have my niece, she was looking for a job. She's a fresher. She has recently completed her engineering, and she was looking for a job. And I told her, why don't you apply for? I mean, she came across with a robotics trainer job, and she said, can I apply? And I said, why not? Why don't you apply? And she applied, and she actually cleared that. She's going to join that job of a robotics trainer. Wow. I said it's a good starting point. Why are you sitting back and waiting for all top 6 or Fortune 500 companies to reach out to you? You first start working. True. And forget about everything. If you are working, you are learning. True. So forget about anything that you have to only focus on. This is specialization, this is skill. पहले मार्केट में निकल जाओ, थैला लेके निकल जाओ. पहले लोग होते थे ना, रिज्यूमे लेके ढूंढते थे, कुछ भी गलत नहीं था. I did that. I mean literally, मतलब I think बहुत लोग ऐसा करते हैं. तो आप अगर हेजिटेट कर रहे हो कि मैं ये जॉब नहीं करूँगी, मैं सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स, एंड आई एम सेइंग कि सर्टेनली वी शुड ऑलवेज मेंटेन सम डेकोरम कि हम किस तरह की जॉब्स करना चाहते हैं. पर अगर आपको मैकडोनल्ड्स में अगर जॉब मिल रही है एज अ फ्रेशर, क्या बुराई है उसको काम करने. आप कस्टमर सर्विस सीखते हो. अगर आप मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हो, अगर आप स्टारबक्स में काम कर रहे हो, यू लर्न द customer and client behavior. Yeah. You are sitting in an environment जहाँ पे one of the best leaders of the organizations and industry are coming actually and having a cup of coffee. तो क्या बुराई है. मतलब मेरी डॉटर को मैं बोलती हूँ, अगर तुम्हें 12th के बाद अगर मैकडोनल्ड्स में या किसी इस तरह के जॉइंट में काम करना पड़े तो तुम बिल्कुल करना, बिकॉज यू विल लर्न. सो मुझे लगता है किसी भी काम को करने में हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए. तो फ्रेशर्स के लिए मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि don't wait for the ideal job to come to you. You get out in the market, start working, and you will realize that your visibility will automatically increase. True. And you will come in eyes of the people who are actually hunting for talent like you. So agar and then work on your skills also. So while you are actually doing a part-time job like I did when I was a lecturer, I was preparing for the companies also. True. So I think you should do something rather than sitting idle and figure out like what you like. So one is that you find what you like. One is that you are aspiring for joining something which you like, but you are still giving 100% to what you get. So one is what you like, one is what you get. So give 100% to what you actually get to get what you like. Wow. Right. True. I think you summarized it so beautifully. And मुझे लगता है यही right approach है किसी के लिए भी. आप किसी भी field में हो, doesn't matter, whatever experience you're coming, fresher, whatever. मुझे लगता है यही तरीका है. People used to wait कि अरे मुझे वहाँ से call आएगा, then I'll go. अगर नहीं आएगा, then I'll not go. बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया आपने. मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ कंपनीज में ही क्यों अप्रोच करते हैं इंटर्नशिप के लिए. अपनी इंटर्नशिप के दौरान वो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है या 2 साल का MBA होता है, उसमें वो कितनी बारी
मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप करके कितना कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं, मतलब दे आर फॉलोइंग वर्ल्ड क्लास प्रोसेस। एंड मुझे लगता है कि सारी कंपनीज, आप कोई छोटी से छोटी कंपनी से लेके आप टॉप नॉच कंपनी में देखो, इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप अगर गेट पे जाते हो एंड आप जो गार्ड है, गेट कीपर है, आप उसके बिहेवियर से बता दोगे कि कंपनी का सीईओ कैसा है। अगर वो ऐसे ही कैजुअल तरीके से बैठा हुआ है, ऐसे करके पैर ऐसे करके, एंड एंड नॉट बॉदरिंग कि कौन आ रहा है अंदर, कौन नहीं आ रहा है अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी का कल्चर कैसा है। पर आप अगर देखते हो कि अगर वो बंदा ही इज़ गिविंग हिज बेस्ट, तो यू विल नो कि ये कंपनी, व्हेन ही इज़ एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ लीडर, देन थिंक अबाउट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी छोटी से छोटी कंपनी, एक छोटी सी शॉप, एक टाइप राइटिंग शॉप, या कहीं भी आपको अगर कुछ भी काम करके कुछ एक्सपोजर मिलता है, अगर आपको लगता है सीखने को मिल रहा है, व्हाई नॉट गो फॉर इट। सुपर, वाओ।